Yes, a very good morning. So, yesterday we had covered the topic in relation to the political rise of other backward classes, under which we understood what was Mandal Commission and how Mandal recommendations were implemented, which were the governments which were involved in the implementation of these recommendations, and what were the outcomes and consequences of Mandal Commission, and what are the significance of this political rise of other backward classes even till date. So what is the significance? That is why we are studying it under the developments after the election of 1989. So this was one of the another development which have lot of influence on the Indian politics still. So today we are moving forward with this particular chapter, that is Indian politics, trends and development, which is the last chapter of the syllabus, and the topic for the day is political fallouts. So we'll try to understand this topic, political fallouts. So we'll read it from your book. The 1980s also saw the rise of political organizations of the Dalits. So when we talk about the 1980s, as I told you, whenever there is like 1980s, it means we are talking about the complete decade of 10 years, that is from 1980 to 1989. Okay, so we are talking about these particular 10 years completely. So if you see this period of 1980 to 1989, which we are calling as the period of 80s, okay, so we saw lot of political organization of the Dalits. Previous to this topic we were studying about OBCs, other backward castes, but now we are talking about 80s also saw upcoming or emerging of few political organizations, not parties, political organizations of the Dalits. Okay. In 1978, the Backward and the Minority Community Employees Federation was formed. Underline this. There can be a one more question, that what is the full form of BAMCEF? So you must know this was an organization that's name was Backward and Minority Communities Employees Federation, which was formed in 1978. This organization was not an ordinary trade union for government employees. If you see its name, Backward and Minority Communities Employees Federation, जो backward communities को employment देते थे, ये जो organization बना था employment देने के लिए बना था. But if you see properly, this organization was not an ordinary trade union. कोई ordinary कोई ऐसा छोटा मोटा organization नहीं था ये government employees का. It took a strong position in favor of political power. It was very much involved in the politics of our country. It was very much significant from the point of view of the political power to the Bahujans. तो जो हम बोलते हैं, हम समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में, ये यहीं से इमर्ज होना शुरू हुआ था. जो हम पार्टीज देखते हैं आज, दलित पे बेस, ओबीसी पे बेस, एसटी पे बेस, वो सब पार्टीज यहाँ से इमर्ज होनी शुरू हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ दलित्स. तभी लिखा है, it took a strong position in favor of the political power of the Bahujans, the SC, ST and OBCs and minorities. इन लोगों को सपोर्ट करती थी ये पार्टीज. SC, ST, OBC भी इंक्लूड हो गया और अदर कोई माइनॉरिटीज हो उनको भी. It was out of this that the subsequent Dalit Shoshohit Samaj Sangharsh Samiti and later the Bahujan Samaj Party BSP emerged under the leadership of Kanshi Ram. अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा. जो हम BSP आज पढ़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी, it emerged under the leadership of Kanshi Ram. वन मार्क मुझे याद रखना, ठीक है. The BSP began as a small party supported largely by, तो ये एक छोटी सी पार्टी स्टार्ट हुई थी जिसको मेजरली ये एक टाइप से बोलते हैं कास्ट बेस्ड पार्टी थी, जो किसकी थी, दलित्स की थी. तो दलित इसे सपोर्ट करते थे, जितने भी वोटर्स थे दलित के वो इसको वोट देते थे. इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बेसिकली 3 स्टेट्स में ये पार्टी इमर्ज हुई थी. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वो भी ये पार्टी किन लोगों की थी, दलित की. जब इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता था दलित होता था, तो जितने भी वोट्स जो लोग देते थे, वोट बैंक था वो किसका था, दलित पीपल का ही था. ठीक है. तो 3 स्टेट में पहले इमर्ज हुई थी, बट एक छोटी सी पार्टी थी. बट इन 1989, हमें पता है 1989 कौन सा ईयर है, वी सी अ ट्रांजैक्शन, यहाँ से कांग्रेस सिस्टम एंड हो रहा था. तो इस ईयर में इलेक्शन में देखिए क्या हुआ है. बट इन 1989 एंड 1991 इलेक्शन, इट अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन द उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. इट गॉट अ ब्रेक थ्रू इन द उत्तर प्रदेश. दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया that a political party supported mainly by Dalit voters had achieved this kind of political success.
अब यहाँ पर ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे, इन्होंने सीट्स भी जीती। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने सक्सेस अचीव की थी ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर वोट ऑफ दलित्स। एक ही सेक्शन के वोट के पावर पे इन्होंने सक्सेस को अचीव किया। ऐसी कोई पार्टी अभी तक नहीं आई थी कि एक किसी कास्ट की बेस पे बस उसी को लोग वोट कर रहे हैं। तो ये दलित बेस्ड पार्टी थी, ठीक है। तो हल्का सा ये इमर्जेंस दिखाया है बीएसपी पार्टी का, जो इसके ऊपर अगर बेस देखे तो दलित की पार्टी थी, ठीक है। फिर मेजरली हम इसको ये बोल सकते हैं बहुजन समाज जिसे बोलते थे, क्योंकि इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको इंक्लूड किया जाता था। In fact, the BSP under Kanchiram leadership was embraced as an organization based on pragmatic politics. It derived confidence from the fact that Bahujans, SC, ST, OBC and religious minorities constituted a majority of the population. ये लोग ये मानते थे कि ये पार्टी के बनना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने बीजेपी बना दी, कांग्रेस बना दी और बहुत सारी सीपीआई बन गई, लेफ्ट पार्टीज हो गई, राइट पार्टीज हो गई, पर अभी तक ऐसी पार्टी नहीं थी जो इनको इम्पोर्टेंस दे। SC, ST, OBC और अदर माइनॉरिटीज जो अगर ये पॉपुलेशन थी, अगर ये पाई चार्ट बना दूंगा सपोज, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करूं मान लो दिस इज बीजेपी, इसका और बड़ा पार्ट कांग्रेस का इन्फ्लुएंस ज्यादा था, पॉपुलैरिटी थी, ये कांग्रेस मान लेते हैं, छोटा लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी। बट जो ये बचा हुआ पार्ट था, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पार्टी नहीं थी, इसीलिए इस चीज की जरूरत है बीएसपी जैसी पार्टीज की जरूरत है। ऐसी पार्टी और भी आई होगी, बट हम बोले अगर पॉपुलेशन को डिवाइड किया हमने, राइट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस, ये पॉपुलेशन को तो कवर कर रहे थे पर्टिकुलर, बट ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी वाज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी गवर्नमेंट। इस टाइप की इसमें आ जाते हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप की पार्टीज की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इसने यहाँ पे गेन की पॉपुलैरिटी और सक्सेस। इनफैक्ट बीएसपी अंडर कांशीराम लीडरशिप, अच्छा यहाँ तक हो गया था, and were a formidable political force on the strength of their number. Since then the BSP has emerged. उसके बाद से BSP has emerged as a major political party player in the state and has been in government on more than one occasion. Its strongest support still comes from Dalit. अभी भी उसकी पावर देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, बेस देखेंगे, still come from the Dalit voters. But other than Dalit, still और लोग भी उसे वोट करने लगे हैं. But it has extended its support now to various other social groups. तो अब ये लिमिटेड नहीं रह गया है कि दलित्स विल ओनली वोट फॉर बीएसपी, अदर सोशल ग्रुप्स हैव आल्सो स्टार्टेड हैविंग फेथ एंड ट्रस्ट ऑन बीएसपी एंड दिस इज द गुड पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत पॉपुलैरिटी में इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। In fact, the BSP, this we had done, but it had expanded its support to the various other social groups. In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently other in competition with each other. So if you see after 1989, this trend has started where we are talking about OBC. हमने रिजर्वेशन ऑफ OBC पढ़ा ना yesterday और मंडल कमीशन, so एक ये डेवलपमेंट हो गया, प्लस एक पॉलिटिकल सिस्टम में ये डेवलपमेंट हो गया जहाँ पर एक बीएसपी जैसी पार्टी जो एक पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे इमर्ज हो रही है, सक्सेस भी मिल रही है, पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। So these are some of the developments which we can also see after the election of 1989, which we call as the end of the Congress system. And वहाँ से बीजेपी को भी हम बोलते हैं, वहाँ से बीजेपी की इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने लगी थी स्लोली। Now moving forward, communalism, secularism, democracy. These terms are very well known to you from the very junior classes. Communalism is related to particular religion, okay? And secularism, you know that we have the freedom to propagate and follow any religion we want. कोई भी हमारा particular what we say legal religion नहीं है जिसको फॉलो करना ही करना है। हमारे कंट्री का हम ये नहीं बोलते हैं कि हिंदुइज्म हमारा एक नेशनल रिलीजन है that everyone has to follow. Our country is a secular country. You have the right, you have the freedom to propagate and follow any religion you want. कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है, ठीक है। And democracy, you know, where people have the rights and where they can represent themselves in the government policies. The other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity. अब एक और अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं इस पीरियड का, आफ्टर 90s का जो पीरियड हम देख रहे हैं, यहाँ पे कैसे पॉलिटिक्स शुरू होने लगी है
रिलीजन के बेस, अभी तो हम कास्ट बेस देख रहे थे, कास्ट के बेसिस पे पार्टीज बन रही थी, कास्ट के बेसिस पे मंडल कमीशन आ रही थी। अब हम जो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देख रहे थे इसी पीरियड में, वो क्या था, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनके बेस, इसके बेस को बना करके पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहे थे। That is why we are studying here. The other long-term development during this period was the rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy. तो एक क्वेश्चन मार्क उठ गया था हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, डेमोक्रेसी की, बट कुछ इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर एरा जहां पे वी कुड से दैट ये डेमोक्रेसी भी सस्पेंड हो रही थी, हमारी सेकुलरिज्म का जो एक आइडिया है, कंसेप्ट है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे थे। तो वो देखते हैं क्या था। वी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इमरजेंसी द भारतीय जनता संघ हैज इमर्ज्ड इनटू द जनता पार्टी after the fall of the Janata Party and its breakup. The supporters of erstwhile Jan Sangh formed the Bharatiya Janata Party. So here ये एक आपको रास्ता बता रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी बनी है। अगर हम 6 चैप्टर से देखते हैं, जब इमरजेंसी खत्म हुई तो सबसे पहले कौन सी पार्टी सामने आई? जनता पार्टी। जनता पार्टी से ही ब्रेकअप होकर के उसके सपोर्टर्स ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जनसंघ। जनसंघ से ही कौन सी पार्टी बनी है जो आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो एक इसकी स्टोरी बता दी, एक लाइनअप बता दी कैसे पार्टी बनी है इन 1980s। तो 1980s की बात हो रही है। Initially the BJP adopted a broader political platform than that of the Janasangh. It embraced Gandhian socialism as its ideology. तो एक हर पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। तो जो बीजेपी की स्टार्टिंग में आइडियोलॉजी थी वो कौन सी थी? गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते थे, गांधी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस। बट उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए लोगों के बीच वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रहे थे बीजेपी, ओके। Did not get much success in election held in 1980s and 84. तो 80 में और 84 में अगर हम देखें तो बीजेपी का इतना अच्छा रिस्पांस, पॉपुलैरिटी नहीं देखने को मिली, क्योंकि जो ये आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे गांधीयन सोशलिज्म, उसका इतना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद देखते हैं आफ्टर 1986 द पार्टी बिगेन टू एम्फसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट्स आइडियोलॉजी। उसके बाद 1986 के बाद ये क्या करना शुरू करते हैं, ये इम्पैक्ट डालते हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी में क्या डाल देते हैं? हिंदुत्व। ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी पार्टी है बीजेपी, ये किसके लिए फाइट कर रही है, किसकी राइट्स, किसकी फैसिलिटीज, किसकी इक्वालिटी की बात करती है? ओनली हिंदूज। वो ये प्रूव कर रहे थे कि जो हमारा नेशन है ये किसका है? नेशन है हिंदूज का नेशन है। इट मींस अगर वो ये चीजें प्रूव करना चाह रहे थे तो हम किसके अगेंस्ट बात कर रहे थे? सेकुलरिज्म के अगेंस्ट। ये हमारी कंट्री क्या बोलती है? हम सेकुलर है, सारी रिलीजन हमारे लिए इक्वल है, कोई भी स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। पर अगर ये पार्टी पर्टिकुलरली ऐसी बातें कर रहे थे, हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे थे, इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट जा रहे थे? डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ बीजेपी परस्यूड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व एंड अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ मोबिलाइजिंग द हिंदू। हिंदूज को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। जो अलग अलग पार्ट्स में हिंदूज थे उनमें इस टाइप की फीडबैक उन लोग को दे रहे थे, उन लोग को इस टाइप की चीजें बता रहे थे कि सारे हिंदूज में यूनिटी आ जाए, अगेंस्ट हो जाए दूसरे रिलीजन्स के, ठीक है। तो मोबिलाइज कर रहे थे। Hindutva literally means Hinduness and was defined by the originator B.D. Savarkar as the basis of Indian in his language Hindu nationhood. वो यही बता रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है बेसिकली वो हिंदूज का है, हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदूज के लिए है, तो ये फोकस कर रहे थे। It basically meant that to be members of the Indian nation, everyone must not only accept India as their fatherland, but also their holy land. होली लैंड ये बोले, अगर हम इंडियंस हैं, हम हिंदूज हैं, तो हमें क्या करना है? इंडिया को तो हमें मानना ही है एज हमारा फादरलैंड, ठीक है, बट ऑल्सो देयर होली लैंड। Believers of Hindutva argue that a strong nation can be built only on the basis of a strong and united national culture. अब ये बोले जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते थे, जिस कल्चर को सपोर्ट करते थे, उनका कहना था हिंदुत्व तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता, हमारी कंट्री यूनाइटेड तभी हो सकती है अगर हमारा कल्चर कैसा होगा? सेम होगा, एक होगा। हमारा कल्चर सेम है, इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है अगर हम लैंग्वेज, कलर, रिलीजन, कास्ट की बात करें। बट अकॉर्डिंग टू द हिंदुत्व, जो लोग हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू बीजेपी पार्टी, हमारी कंट्री में यूनिटी और डेवलपमेंट तभी आ सकता है अगर हमारी कंट्री का कल्चर क्या हो जाए? सेम हो जाए। इट मींस वो क्या प्रमोट कर रहे थे? हिंदुत्व को, ठीक है। दे आल्सो बिलीव दैट इन द केस ऑफ इंडिया द हिंदू कल्चर अलोन कैन प्रोवाइड द बेस। और उनको लगता था अगर इंडिया की बात करें तो जो हिंदू कल्चर है वो अकेला ही बहुत है एक प्रॉपर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया को, जहां पे लोग बस एक ही कल्चर को फॉलो करें और हम डेवलप कर सकते हैं।
तो ये आइडियोलॉजी किसकी बनती जा रही थी? भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम उसे हिंदुत्व से जोड़ के चलते हैं। Two developments around 1986 became central to the politics of BJP as a Hindu party. The first was the Shah Banu case in 1985. सीधा हम अयोध्या डिस्प्यूट पढ़ेंगे। यहाँ ज़्यादा पढ़ लेना कैसे बीजेपी इमर्ज कर रही थी, इसके आगे का ये एग्जाम्पल हमारा अयोध्या डिस्प्यूट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ अयोध्या डिस्प्यूट इसके बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये आइडियोलॉजी चेंज हो रही थी हिंदूज की, और जो उनके आइडियाज थे अबाउट इंडिया, अबाउट सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया, उसकी वजह से ही जो डिस्प्यूट हुआ था। अयोध्या जो यूपी में एक जगह है, राम मंदिर है, जहाँ पे बोलते हैं बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके, उन्होंने पहले बोला था ये राम का बर्थ प्लेस है, वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था 16th सेंचुरी में, उसको डिमोलिश कर दिया मुगल एम्परर ने, वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी। तो 1992 में उसको डिमोलिश कर दिया था बीजेपी के एक्टिविस्ट ने, ठीक है। तो वो उसके बारे में स्टोरी है। तो उससे पहले ये आपको इसलिए बताया क्योंकि ताकि पता चले कि ये जो डिमोलिश किया टेम्पल को, जो हिंदूज को इतना सपोर्ट करते थे, तो ऐसे कौन कौन सी पार्टीज, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इंडिया किसका है? हिंदूज का है, ठीक है। तो अयोध्या डिस्प्यूट पढ़ लेते हैं। द सेकंड डेवलपमेंट वाज द ऑर्डर ऑफ द Faizabad District Court in February 1986. The court ordered that the Babri Masjid premise be unlocked so that Hindus could offer prayers at a site which they considered as a temple. अब यहाँ बोल रहे हैं एक डिसीजन आया फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 1986 में, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले 1940 में ही ये यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था हिंदू मुस्लिम का कि कौन पूजा करेगा, किसकी मस्जिद है, तो इसको क्या किया था गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले इस मस्जिद को लॉक कर दिया था, ठीक है। बट 86 में क्या होता है, द कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर देती है कि बाबरी मस्जिद की जो प्रीमाइस है भी उसको खोल दिया जाए, क्योंकि हिंदू वहां पर प्रेयर करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो उनका टेम्पल है। जैसे ही वो खुलता है, a dispute has been going on for many decades, decades मतलब बहुत सालों से इसके ऊपर इश्यूज चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, over the mosque known as बाबरी मस्जिद at Ayodhya. The बाबरी मस्जिद was a 16th century mosque. ये जो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं हम, 16th सेंचुरी में बना था ये अयोध्या में, and was built by मीर बाकी, मुगल एम्परर थे ये, मुगल एम्परर के बाबर जनरल, मतलब बाबर जो थे मुगल एम्परर, उनका जनरल था ये जिसने ये बनाई थी मस्जिद। Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple, पर हिंदूज बिलीव करते थे कि पहले टेम्पल को तोड़ा गया, जो किसका टेम्पल था? लॉर्ड राम का था, जो उनका बर्थ प्लेस था, उसको तोड़ करके उसी के फाउंडेशन के ऊपर इन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाया है, ठीक है। ये डिस्प्यूट जो था टू द फॉर्म ऑफ कोर्ट केस, ये डिस्प्यूट हिंदू मुस्लिम का इतना हो गया कि इसका क्या हो गया, ये कोर्ट केस हो गया, एंड हैज कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स, और इतने सालों से ये कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है, इसका डिसीजन नहीं आ पा रहा था। In the late 1940s, mosque was locked up as the matter was in the court. So, because this matter was in the court, तो 1940s में ही government has given the decision that this masjid should be locked. Lock कर दी ताकि ना हिंदू आए ना मुस्लिम आए, तो conflict होगा ही नहीं। तो 40 से बंद कर दिया, 86 तक बंद रहा। फिर खोला उसे तो दोबारा से conflicts start हो गए। अब देखते हैं क्या होता है, अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया था इसका। As soon as the locks of the Babri Masjid were opened, जैसे 86 में ये locks को open किया गया, मोबिलाइजेशन बिगेन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब मोबिलाइजेशन मतलब हिंदूज भी आने लगे, मुस्लिम्स भी आने लगे। वो बताना चाहते थे दिस प्लेस बिलोंग्स टू अस, दिस रिलीजियस प्लेस बिलोंग्स टू अस। वो अपने अपनी पॉइंट्स बताने लगे कि किसके बेसिस पे दे आर कॉलिंग कि ये जगह हमारी है, ठीक है। मेनी हिंदूज एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटीज ऑन दिस क्वेश्चन। अपने अपनी कम्युनिटीज में यूनिटी ला रहे थे कि हमको ये जगह लेनी है, हिंदूज भी मुस्लिम्स भी। सडनली दिस लोकल डिस्प्यूट बिकेम अ मेजर नेशनल क्वेश्चन। जो ये लोकल डिस्प्यूट था, बस एक छोटी सी जगह यूपी का छोटा सा डिस्प्यूट था एक मस्जिद के ऊपर, ये नेशनल इशू बन गया, पूरी कंट्री में इसकी बात होने लगी, एंड लेड टू कम्युनल टेंशंस। कम्युनल, जब भी वर्ड कम्युनल आता है मतलब दो रिलीजन के बीच में, कम्युनल राइट्स बोलूंगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में मतलब वायलेंस स्टार्ट हो गया, मारना पीटना काटना, ठीक है। तो एक टेंशन का माहौल बन गया, एक टेंशन का एनवायरनमेंट आ गया हमारी कंट्री में, जिसे हम बोलते हैं कम्युनल टेंशन। बीजेपी यहाँ पर एक कंट्री ये सॉरी एक पार्टी आ रही है बीजेपी, जिसके बारे में हमने जिसकी आइडियोलॉजी की ऑलरेडी बात कर ली। अब इस तरह की सिचुएशन थी तो ऑफ कोर्स अगर ये हिंदुत्व को सपोर्ट करते थे तो ये क्या सपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा, टेम्पल। तो बीजेपी मेड दिस इशू इट्स मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लान। इनको पॉपुलैरिटी तो चाहिए थी, क्योंकि जो इनकी पहले की आइडियोलॉजी थी क्या थी, गांधीयन आइडियोलॉजी जो थी सोशलिज्म की, उससे तो इनको इंपॉर्टेंस मिली नहीं, पॉपुलैरिटी मिली नहीं 80s और 86 में। बट नाउ दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, इसको उन्होंने अपना क्या बना दिया, पॉलिटिकल बेस बना दिया कि अगर हम ये काम करेंगे तो हो सकता है कि जितने हिंदूज हैं उनका सपोर्ट हमारी पार्टी को
मिले। तो तभी लिखा है बीजेपी मेड दिस इशू, इस इशू का, टेम्परल इशू का इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लान, एक प्लेटफॉर्म बना लिया अलॉन्ग विद मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और अपने साथ और ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर लिया। जानते होंगे आप आरएसएस भी हिंदुत्व का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड विश्व हिंदू परिषद। ठीक है, तो ये जो हिंदूज की ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, ये तीन मिल गए एक साथ। इट कन्वीन्ड अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक एंड मोबिलाइज्ड प्रोग्राम्स, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स करने लगे, मार्च करने लगे, लोगों को मोटिवेट करने के लगे, यूनाइट करने में लगे विद इंडियंस को, सॉरी हिंदूज को। This large scale mobilization led to the subcharged atmosphere and many instances for the communal violence. इसकी वजह से इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए लोग एक दूसरी कम्युनिटी के लिए, हिंदूज मुस्लिम्स के अगेंस्ट, मुस्लिम्स हिंदूज के अगेंस्ट, कि यहाँ पर एक जो इन्वायरमेंट बन गया किसका बन गया, फाइनली कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया, मारना पीटना। ठीक है, the BJP in order to generate public support, BJP got the right opportunity to gain that particular public support. Of course they were doing all this to gain the public support, to gain the power to be at the central government. So now they got the chance to get the public support, took out a massive march. उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, and this march was called रथ यात्रा, और ये गुजरात में सोमनाथ से शुरू की थी, अयोध्या यूपी तक आई। कहां से? सोमनाथ गुजरात से स्टार्ट की, रथ यात्रा बोला। ये किसने, जो पॉलिटिकल लीडर थे, एल.के. अडवाणी को जानते हैं आप, एल.के. अडवाणी ने इसको लीडरशिप दी थी इस रथ यात्रा को, और इट वाज अगेंस्ट द बाबरी मस्जिद। तो कितनी दूर से शुरू की थी? गुजरात से यूपी में अयोध्या तक। तो इतना ज्यादा यहाँ पे टेंशंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था इंडिया में जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल इंसिडेंट, बट इसे कम्युनल फेज दे दिया था हिंदू मुस्लिम्स का एक दूसरे के अगेंस्ट। अब फाइनली ये सिचुएशन क्रिएट हो गई अभी, बट वहां मस्जिद है। फाइनली क्या होता है? डिमोलिशन एंड आफ्टर, इस मस्जिद को तोड़ दिया। किसने तोड़ा? उसके बाद क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इन डेट याद रखना, 6 दिसंबर था वैसे 6 इन दिसंबर 1992, 6 दिसंबर था। On 6 December 1992, the organization supporting the construction of the temple had organized a car seva. जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही थी, that there should be a temple in place of बाबरी मस्जिद, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया था। क्या? उसे कार सेवा बोला। कार सेवा वो लोग होते हैं जो वॉलेंट्री अपने मन से सेवा करना चाहते हैं, टेम्पल बनाना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं फॉर हिंदूज। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन था इसको हमने क्या बोला? कार सेवा। ठीक है, मीनिंग वॉलेंट्री सर्विस बाय द डिवोटीज, अपने मन से जो सर्विस देना चाहते हैं फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल, राम टेम्पल बनाने के लिए जो खुद से वहां पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, द सिचुएशन हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली अयोध्या। बहुत टेंस सिचुएशन थी, कुछ भी हो सकता था। कम्युनल जोन के अकॉर्डिंग देखे हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत टेंशंस का माहौल बन गया था। ठीक है, कुछ भी हो सकता था अयोध्या में। तो इसीलिए इसी डर से कि हमारी कंट्री में जो यूनिटी है इसमें प्रॉब्लम ना आए, जो हमारा सेकुलरिज्म एक आइडिया है, जो डेमोक्रेसी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया? इंटरफेयर किया और एक ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि उस एरिया को, जो जोन है अयोध्या का, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वहां पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर दैट द डिस्प्यूट साइट विल नॉट बी इंडेंजर्ड, वहां पे कोई डेंजर नहीं होना चाहिए। However, thousands of people gathered from all over the country. उसके बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और इजीली अयोध्या में थाउजेंड्स ऑफ लोग जमा हो गए पूरे इंडिया से, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी। उस दिन कुछ होने वाला था, ये डेफिनेटली था। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या होता है, thousands of people gathered from all over the country at Ayodhya on 6th December 1992 and demolished the mosque। और जितने हिंदूज कार सेवक थे, हिंदूज को सपोर्ट कर रहे थे, जो बीजेपी को, आरएसएस प्लस वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, जो ये हिंदूज ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके सपोर्ट से ऑल द पीपल डिमोलिश्ड द मॉस्क, उस मॉस्क को तोड़ दिया पूरी तरीके से। ओके, तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। दिस न्यूज लेड टू द क्लैश बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्रीज। अब ये इशू वाज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू अयोध्या। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंट्री में जितने भी रीजन थे हिंदू मुस्लिम्स के, उनके बीच में टेंशंस हो गई, वॉयलेंस शुरू हो गया हमारी कंट्री में चारों तरफ। ठीक है, दिस वॉयलेंस इन मुंबई इरप्टेड अगेंस्ट इन जनवरी 1993 एंड कंटिन्यूड। इसी इशू की वजह से मुंबई में इशू जनवरी 1993 में उठा फिर से एंड कंटिन्यूड, 2 वीक तक कंटिन्यूअस इस टाइप का वॉयलेंस चलता रहा, कम्युनल वॉयलेंस। ठीक है, इसकी वजह से। तो ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स उस टाइम के देखिए, बाबरी मस्जिद डिमोलिश, सेंट्रल सेक्स कल्याण गवर्नमेंट। उस टाइम पे जो याद रखना, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह थे, ठीक है, बीजेपी के थे वो, तो उनको फिर उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया था, उनको लगा था उनकी गलती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या कर दी,
डिसॉल्व कर दी गवर्नमेंट, यूपी में जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया एज अ पनिशमेंट, कि जब वो इस चीज को प्रमोट करते गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था उस एरिया को इंडेंजर्ड नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशंस ले लो, बट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उसके बाद डिसॉल्व कर दिया था गवर्नमेंट को। ठीक है, ये भी तरीके हैं सारे नेशनल कटिंग, अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मैनिपुलेशन, वाजपेयी डिमोलिशन ऑफ कॉज ऑफ रिमूवल, अडवाणी इसलिए अडवाणी उसमें लीडर काफी इंपॉर्टेंट थे, पॉपुलर थे, रथ यात्रा भी इन्होंने चलाई थी आगे, वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में पूरी कंट्री में इसके बारे में बात होने लगी। अब द इवेंट एट अयोध्या लेड टू अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट, अब ये इवेंट हो गया अयोध्या में, ये हो गया, इसकी वजह से और डेवलपमेंट्स हुए, डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। द स्टेट गवर्नमेंट, या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे ये भी दे सकते हैं हम। स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी एज द रूलिंग पार्टी, उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी थी एज द रूलिंग पार्टी जब ये इंसिडेंट हुआ, was dismissed by the center, सेंटर ने उसे डिसमिस कर दिया, डिसॉल्व कर दिया गवर्नमेंट को। along with that other states where the BJP was in power were also put under president rule, और पनिशमेंट में अदर देन यूपी और भी स्टेट जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां पे क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल। उन्हें क्योंकि क्या लगा, आइडिया क्या क्लियर हो गया था कि बीजेपी कैसी गवर्नमेंट है, हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, तो जो अयोध्या में वो दूसरी स्टेट्स में भी प्रमोट कर सकती है बीजेपी, तो बीजेपी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। ठीक है, A case against the chief minister of Uttar Pradesh was registered, चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एक केस हो गया था इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस व्हेन वी गो अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड रूल्स और या ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो नहीं किया था हमारे चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश के, सो ही एक केस फाइल हो गया था उनके अगेंस्ट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंस ही डिड नॉट गिव एन अंडरटेकिंग दैट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड। जो स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने, ऐसा लगता है। The BJP officially expressed regret over the happening at Ayodhya. The central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to demolition of mosque. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा हमारा मंडल इशू के लिए मंडल कमीशन बना था, ठीक है, और उसके लिए इमरजेंसी को स्टडी करने के लिए उसके पढ़ने के लिए कौन सा बना था, शाह कमीशन। वैसे ही बाबरी मस्जिद के लिए भी एक कमीशन बनाया गया कि इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाए, रिपोर्ट सबमिट की जाए। Most political parties condemned the demolition and declared that this was against the principle of secularism. सारी political parties against थी बीजेपी की इस इंसिडेंट के लिए। They said this act was against the principle of secularism. जो हमारी कंट्री कंसेप्ट फॉलो करती है सेकुलरिज्म, उसके अगेंस्ट था ये। ठीक है, कि किसी की मस्जिद तोड़ दी, रिलीजन बेस पे इतने सारे लोगों ने सप्रेस किया हुआ है मुस्लिम्स को, ठीक है, और कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं माना, तो इसको अगेंस्ट द सेकुलरिज्म माना गया। This led to the serious debate over secularism and posed the kind of questions our country faced immediately after partition. Was India going to be a country where the majority religious community dominated over the minority? जब पार्टीशन हुआ था तब भी ये रीजन था कि जो पाकिस्तान बना था उन्हें लगता था कि जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, हिंदूज को दी जाती है और मुस्लिम्स को सप्रेस किया जाता है। तो दोबारा से 1992 में ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है फिर से कि अभी भी इंडिया की आइडियोलॉजी वही है कि हिंदूज मेजॉरिटी में है तो दे विल सप्रेस द माइनॉरिटीज, तो इस टाइप की एक्टिविटी लग रहा है इसको देख करके। ठीक है, was India going to be a country where the majority religious communities dominated over the minorities, or what or would India continue to offer equal protection of law, या फिर इंडिया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स सबको देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। क्योंकि इंडिया का अगर हम बात करें सेकुलरिज्म की, डेमोक्रेसी की, तो हमारा यही है ना, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन, एनी सोशल ग्रुप या एनी रिलीजन, किसके बेस पे, कास्ट, कलर, लैंग्वेज के बेसिस पे। फॉर आवर कोड, फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये हमारी पॉलिसी है। बट अगर इस टाइप के इंसिडेंट होंगे फिर तो क्वेश्चंस अराइज होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म पर भी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पर भी। तो ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट अयोध्या। थोड़ा सा और उसके बारे में, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैज आल्सो बीन अ डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पस। India democratic politics is based on the premise that all religious communities enjoy the freedom that they may enjoy any party and they will, so this is not so important। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अयोध्या डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए और वो कैसे डेवलप, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पॉलिटिक्स पे। ठीक है, गुजरात वर्ड्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2004, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें भी स्टडी अबाउट, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपका एज अ स्टोरी जल्दी बताया है, बस थोड़ा माइंड में रहेगा तो कोई गलत नहीं।
लोकसभा इलेक्शंस 2000, basically we will talk here about UPA led by Congress. First and second. So basically ये टॉपिक आपका थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा। जाइए डिफरेंस है इसमें हम इलेक्शन का एक पढ़ते पैटर्न तो पढ़ते हुए आए रहते हैं, तो इसमें देखते हैं लोकसभा इलेक्शन फिर फाइनली कब होते हैं 2004 तक हम पहुंच गए। इन द इलेक्शन ऑफ 2004 कांग्रेस पार्टी टू एंटर इनटू अ कोलिशन। अब कांग्रेस पार्टी को भी क्या लगने लगा, हमारा जो बीजेपी का अलायंस था वो कब बन गया था 1997 के अराउंड से शुरू हो गया था, और उसका आउटकम देखते हैं 1998 में पहली बार, है ना। और 1999 में हमारी गवर्नमेंट बन जाती है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट बनती है 13 मंथ से बनती है, यहाँ पे 30 डेज याद रखना, यहाँ पे 30 मंथ्स, और यहाँ पे कंप्लीट फॉर 5 इयर्स, यहाँ पे टर्म कंप्लीट करती है। और ये किसके अंडर होता है एनडीए लेड बाय बीजेपी। तो जब इतना पहले इन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया था, क्योंकि बिकॉज सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी, अब जो सिस्टम चेंज हो गया था इंडिया का, कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पा रही थी, तो इन्हें रिक्वायरमेंट लगी थी, तो इन्होंने एनडीए बनाया, तो की गवर्नमेंट बनी। तो अब कांग्रेस को भी रियलाइज हुआ कि नाउ वी विल नॉट बी एबल टू गेट अ मेजोरिटी अलोन एज अ सिंगल पार्टी, हमको भी अलायंस बनाना पड़ेगा। तो फाइनली दे डिसाइडेड टू हैव द अलायंस इन फॉर द इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004। उस अलायंस को बोला यूपीए अलायंस, जो मेजर पार्टी थी वो क्या थी कांग्रेस, ठीक है, उसको पढ़ना। In the elections of 2004, the Congress Party to entered into the coalitions in a big way. The NDA was defeated. इस इलेक्शन में 2004 में NDA भी थी, but NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress, known as the United Progressive Alliance, came to power. 2004 में NDA को हराकर, NDA को डिफीट करके ये पार्टी आगे आती है, इसका है हमारा यूपीए गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस, ठीक है। दिस गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। अगर हम बेसिकली यूपीए का सपोर्ट देखेंगे तो इसको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, यस लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। द इलेक्शन ऑफ 2004 आल्सो विटनेस द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब यहां हम क्या देखते हैं, रिवाइवल, जैसे हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पावर 67, 60, 71 के इलेक्शन में, तो यहां पर भी बहुत टाइम से कांग्रेस पावर में नहीं आ पा रही थी। विद द हेल्प ऑफ यूपीए अलायंस यहाँ पे कांग्रेस पावर में आती है, तो इसको भी हमने क्या देखा, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पावर्स। एज अ सिंगल पार्टी नहीं थी, कोलिशन था, बट स्टिल कांग्रेस वाज इन पावर नाउ, ठीक है। तब यहाँ पे देख लीजिए इलेक्शन ऑफ 2004 आल्सो विटनेस द पार्शियल रिवाइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। इट वुड इंक्रीज इट्स सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991। 1991 के इलेक्शन के बाद पहली बार उसको सीट्स मिली थी इतनी, जो इंक्रीज हुई थी। However, in the 2004 election, there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and BJP and its allies. पर difference देखें एनडीए यूपीए में तो बहुत कम था, ठीक है। Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till the 70s. So इसीलिए हम इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, पार्टी सिस्टम देखें, इलेक्शन सिस्टम देखें, कंप्लीटली चेंज हो गया था। अगर हम उसे देखें 1971 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग देखें या 1989 से पूरा चेंज हो गया है, अगर हम 2004 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंज आ गया था यहाँ पर। पहले एज ए इंडिविजुअल पार्टीज को फाइट करते थे, अब अपने अलायंस की हेल्प से वो गवर्नमेंट बना पा रहे हैं। तभी बोला था हमने 1998 से 2014 तक, ये तो 4 स्टार्ट ही हुआ है, 14 तक कैसी गवर्नमेंट बनी है, कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। देयर वाज अ नेग्लिजिबल डिफरेंस चैंपियनशिप, अच्छा हाँ। Thus the party system has now changed almost dramatically from what it was till the 70s. The political process that are unfolding around us after 1990s shows the emergence of broadly 4 groups of parties. अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में 4 ग्रुप ऑफ पार्टीज हो गया। एक ये 2 अलायंस हो गई, यूपी और एनडीए, लेफ्ट पार्टीज हो गई, और जो रेस्ट देखिए क्या क्या है। पार्टीज दैट आर इन कोलिशन विद द कांग्रेस, एक पार्टी हो गई। पार्टीज दैट आर इन अलायंस विद द बीजेपी, थर्ड हो गई लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, एंड द अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस 3, और वो पार्टीज जो इन 3 में से किसी का भी पार्ट नहीं है। सिंगल पार्टी तक चली नहीं है। बीजेपी के साथ जो अलाइड पार्टीज, दोज आर कॉल्ड एनडीए अलायंस। पार्टीज व्हिच आर विद कांग्रेस आर कॉल्ड अंडर यूपीए अलायंस,
लेफ्ट फ्रंट का भी एक अलायंस है और कुछ पार्टी इंडिविजुअल है वो इन तीनों का पार्ट नहीं है, ठीक है। द सिचुएशन suggests that political competition be multi-concerned. By implication, the situation also assumes a divergence of political ideologies. यहाँ पे एक चेंज दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा। अब यूपीए 1 और 2 की बात करें तो 2004 से हुआ था, कब तक चलेगा 2004 से 2009 तक, 4 से 5 6 7 8 9, फिर से इलेक्शन होंगे 9 के बाद, तो कब तक चलेगा 2000। तो इस दोनों में किसकी गवर्नमेंट आई थी? यूपीए, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी थी? मनमोहन सिंह की। 2 टेन्योर के लिए थे ना, वो 2 टर्म के लिए थे, 2004 से 2014 तक। फिर 14 से अब किसका शुरू हो रखा है? बीजेपी, दैट इज एनडीए अलायंस, ठीक है। तो ये 1 और 2 हो गया। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनडीए 1 एंड 2 और एक और एडिशनल टॉपिक है, उन दो को ऐड करके हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पर बीच का जो पार्ट है ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट से जो हमने पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम देयर दैट, या एनडीए 1 और 2 से 100% आएगा मुझे लगता है। अगर हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपना देखेंगे तो जो 2014 के बाद एनडीए गवर्नमेंट है अंडर नरेंद्र मोदी, 2014 के बाद जो है और अभी तक 2020 तक सेकंड टर्म चल रहा है उनका, 2024 में फिर से इलेक्शंस होंगे, तो मे भी क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। तो उसको हम समझेंगे। सीबीएसई ने उसका एक पीडीएफ भी भेजा हुआ है, तो हम उतना ही पढ़ने में तो बहुत कुछ हो जाएगा फिर, बट विल कवर द एरिया और द कंटेंट व्हिच हैज बीन सेट बाय सीबीएसई। ओके।